here you see that glass, when we say that glass has 5 ml of water, or the height of the water is 10 centimeter, this is the crisp value. But when we say that the glass is full or almost full or empty, or the water is in a small amount or large amount, so these are the fuzzy reasoning. And actually in practical behavior, 24 hours we use this fuzzy reasoning, and which is the quality of brain. Okay, so brain does not exactly measure everything at the same time, but compares it with another value. ओके, तो ये आपको समझ में आ रहा है क्या? फजी में अगर हम कहते हैं कि कोई चीज मतलब यस या नो होती है कि अगर ये 5 सेंटीमीटर है, हाँ है, और नहीं है। लेकिन रीजनिंग में क्या है कि हाँ ये चीज उससे बड़ी है, ये चीज उससे छोटी है, ठीक है, या कि ज्यादा टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, टेम्परेचर कम है, ये सब जो है फजी रीजनिंग है, और ये ब्रेन का एक बिहेवियर है। ओके, so these terms very close to the empty and almost full, is small, this all are the elements of the fuzzy reasoning. So here we study the fuzzy sets. Okay, the membership function is defined by mu ax. Suppose a real number is within 0 to 1, so the mu ax will be between 0 to 1. In crisp set the value will be only 1 or 0, but the membership value may vary from 1 to 0. Okay, so here you suppose that a fuzzy set x1 x2 x3, this is x is the output membership grade. So suppose this 0.5 value, 1, 0.75 and 0.5, these are values are the membership grades, means maximum its value may be 1. Okay, and it may be less than 1 for some other value. Suppose that a graph is varying that according to the temperature. So if the temperature is 60 degree temperature is full, then 30 degree temperature is 50% of that, means the membership grade will be 0.5. Okay, so what we will write there? Hello, yes, अभी मैं लेक्चर ले रहा हूँ बेटा, बाद में बात करूंगा, ठीक है? ओके, तो फजी सेट्स में हम वी डिफाइन ए फजी सेट ए इन एक्स such that x is the range of that input, and mu ax is the value. Suppose that here some graph is there, at this is the variation of x with respect to the time with various values of x1. Suppose that we have the range of 0 to x4, x1 to x4. Okay, so the variation of this value, this fuzzy set is determined by given by this equation. So suppose that 60 degree temperature is full, so this is 50 to 50, and this is 40, this is 30. So what is our explanation? 0.5 by x1, 0.7 1 by x2, 0.75 by x3, and 0.5 by x4. This is the explanation for the fuzzy set. Suppose you have b1 equal to tall and b2 equal to very tall. Two membership functions are there. ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि 60% टॉल है और 40% वेरी टॉल है, ठीक है?
मीन्स द टोटल आउटपुट इज, जैसे कोई कहा कि बहुत ज्यादा बड़ा है और केवल बड़ा है, ठीक है ना, तो वो कुछ पार्ट होगा कि भाई हाँ बहुत ज्यादा बड़ा भी नहीं है और बहुत ज्यादा छोटा भी नहीं है, तो उसके हिसाब से ये है कि 60% वो इसका मेंबरशिप है, 60% इस मेंबरशिप में आता है और 40% इसमें है। ओके, सो दिस इज द फजी रिलेशनशिप. So here the membership function is defined by the membership grade and the input value. Okay, second membership grade and the second value. This represents the membership function of a particular variation. Okay, so suppose we have the values. This is the graphical variation. You can say that this is a graphical variation of membership grade with respect to the input range. Okay, समझ में आ गया कि एक पार्टिकुलर वैल्यू है जिससे एक टेम्परेचर. ओके, तो एक यहाँ पे डिफाइंड है कि हाई टेम्परेचर, दिस इज लो टेम्परेचर एंड दिस इज हाई टेम्परेचर. तो यहाँ की जो वैल्यू है वो क्या डिफाइन होगी, 0.6 ऑफ 0.6% ऑफ हाई लो टेम्परेचर एंड 40% ऑफ हाई टेम्परेचर. ठीक है, जब यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे 0% ऑफ लो टेम्परेचर एंड 100% ऑफ हाई टेम्परेचर हो जाएगा. ठीक है, मैं बता रहा हूँ आपको एक एक्सप्लेनेशन से. जैसे कि ये रेंज हो गई लो. ठीक है, ये यहां से यहां तक ये रेंज हो गई आपकी लो टेम्परेचर की. ठीक है, this is the low temperature range. so इसमें एक रेंज है कि सर्टेन वैल्यू पे ये फुल कहलाएगा. ठीक है, और यहाँ पे जाके ये 0 हो गया और ये मैक्सिमम हो गया. तो सपोज कि आवर वैल्यू इज लो हाई. ठीक है, एंड वेरी हाई. ठीक है, एंड सपोज दिस इज 120, 100, and this is 40, this is 80, and this is 120 and 160 degree centigrade. Okay, so suppose we have to select the appropriate temperature which cannot burn the oil burns at 160 degree temperature. Okay, so if suppose we have to make a controller that if temperature is very high. ठीक है, very high. ठीक है, देन कंट्रोलर जो है तो उसमें मिनिमम में सेट हो जाए, सपोज दैट. ओके, या आउटपुट जो है आउटपुट इज वेरी लो. ठीक है, और ऐसे ही अगर
इसमें जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर इज लो, देन आउटपुट इज very high to increase the temperature. So to maintain a fuzzy controller is working like this. तो यहाँ पे you see that when this is temperature low value has gone 0, then 80% is in the full value. ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो टेम्परेचर है वो कैसे बढ़ रहा है, ये टेम्परेचर जो है ये ऐसे बढ़ रहा है। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ की 40 हो गई, 40 डिग्री, ये वैल्यू हो गई कितनी 80 टेम्परेचर हो गया है। ठीक है, 80 डिग्री टेम्परेचर, यहाँ पे जो है 120 हो गया, और ऐसे ही ये वैल्यू जो है 160 हो गया। तो धीरे धीरे हमारा ये वैल्यू बढ़ता जाता है। तो यहाँ पे ये वैल्यू कितनी होगी, ये वैल्यू, दिस वैल्यू इज 60। ओके, पर यहाँ पे 60 तो डिफाइंड है ही नहीं, तो 60 ऐसा डिफाइंड होगा कि 50% ऑफ लो एंड 50% ऑफ, सॉरी 50% नहीं, यहाँ पे ये जो लो की रेंज है वो 0 से 80 है, तो ये 75% ऑफ लो एंड 0.25% ऑफ हाई, ऐसे होगा ना। तो 75% ऑफ लो क्या होगा, टोटल एक रेंज 0 से लेके 80 तक की एक मेंबरशिप की रेंज है, तो 80 का 75% कितना होगा, वो भी 60 होगा, और हाई का 25% क्या होगा, वो भी 60 होगा। मतलब ये दोनों कहाँ पे आता है, 0% ऑफ 0.75% ऑफ लो एंड 0.25% ऑफ हाई। तो यहाँ की वैल्यू ऐसे डिफाइन होती है। यहाँ की वैल्यू क्या डिफाइन होगी, 0% ऑफ हाई एंड 100% ऑफ लो, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/40। ओके, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा 0/0 प्लस 1/40 प्लस ये मेंबरशिप कैसे डिफाइन होगा, यहाँ पे अगर 0.5 अगर लो तो इस पॉइंट को अगर डिफाइन करो तो 0.75 डिवाइड बाई 60। ओके, तो ये यहाँ पे जो इनपुट की वैल्यू है और उसका मेंबरशिप कितना है, ये हमेशा यहाँ पे 1 होगा। ठीक है ना, 1। तो अगर इसका मेंबरशिप वैल्यू कितनी है, इसकी 0.5%, 0.5 होगा ना ये, सॉरी यहाँ 0.5 आएगा। तो अकॉर्डिंग टू, मतलब ये जहाँ पे भी मेंबरशिप फंक्शन कट करेगा तो मेंबरशिप वैल्यू डिवाइड बाय द इनपुट वैल्यू एट दैट टाइम। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ कि इस रेंज का 0.25 है और इस रेंज का 75 है। ओके, तो यहाँ पे हम जो डिफाइन करते हैं वो इस टाइप से डिफाइन करते हैं, द मेंबरशिप ग्रेड and the input value, membership grade for that input value and that input value. So all the membership functions are defined by this. Okay, where xi is the subset of x, the range of the inputs for that individual membership function. तो अगर एक मेंबरशिप फंक्शन का जो रेंज है वो 0 से x4 तक है, 0, x1, x2, x3, x4, तो यहाँ पे जो वैल्यूज है इंटरमीडिएट वैल्यूज, जहां जहां पे मेंबरशिप वैल्यूज ली गई हैं, ये यू सी, ये एट x1 दिस वैल्यू इज 0.5, एट x2 वैल्यू दिस इज 1 हियर, at x3 0.4, okay, and at x4 it is 0,
क्यों? बिकॉज वी आर टेकिंग द मेंबरशिप फंक्शन फॉर ओनली द B1. Okay, first membership function. So for the first membership function, it is defined by this. तो ये समझ में आ गया है क्या कि हम हमेशा क्या करते हैं कि हम रेंज को डिफाइन करते हैं कि तीन, अगर एक टेम्परेचर है तो टेम्परेचर कितने रेंज में डिफाइन होगा। अगर फुल स्केल है 60 डिग्री तो हम उसको डिफाइन कर लिए कि तीन भाग में डिवाइड होगा, लो, मीडियम, हाई। ओके, तो लो, मीडियम, हाई में ओवरलैपिंग में देते हैं हम हमेशा पीक, जो जहाँ पीक वैल्यू होगा एक मेंबरशिप फंक्शन का, वहाँ दूसरे का 0 आएगा। ओवरलैपिंग इस टाइप से देंगे, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है कि आप ये कैसा डिफाइन करते हो। करेक्ट यहीं पे आप ये दूसरा मेंबरशिप फंक्शन देते हो, करेक्ट यहीं पे कि आप ये जो मेंबरशिप फंक्शन है आप यहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर दूसरा मेंबरशिप फंक्शन यहाँ से स्टार्ट हुआ। तो जब ऐसा होगा तो फिर लीनियर नहीं होगा। वो लीनियर इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे तो बिल्कुल बराबर रेशियो है, 50% इसका 50% इसका है। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ ये वैल्यू बहुत कम हो गई, यहाँ मैग्नीट्यूड बहुत कम हो गया। तो यहाँ फिर ये लीनियर, यहाँ पे ऐसे बढ़ेगा फिर ऐसे जाएगा यहाँ वैल्यू और ऐसे, तो ये नॉन लीनियर हो जाता है। ओके, मतलब कुछ जगह के लिए ये हमारा वैल्यूज ओवरलैप में नहीं लेंगे तो लीनियर नहीं आएगा। ये इनपुट आउटपुट का जो रिलेशन है, इनपुट और आउटपुट का जो रिलेशन है वो नॉन लीनियर हो जाएगा अगर ओवरलैपिंग में बराबर हम नहीं देंगे। ओके, अगर हम ओवरलैपिंग में देते हैं तो वो रिलेशन जो हो गया इनपुट आउटपुट का वो लीनियर में जाएगा एकदम ऐसे, ठीक है। Suppose we have to define 0 to 60 डिग्री एक टेम्परेचर है, 0 to 60 डिग्री। ओके, एंड वी हैव टू डिफाइन थ्री मेंबरशिप फंक्शंस। ओके, suppose this 5 membership functions. Okay, so you determine each part, each range by here you see the range is, suppose you take the 12 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पांच मेंबरशिप फंक्शन में आप डिफाइन करोगे तो एक मेंबरशिप फंक्शन 12 का हो जाएगा। ओके, एंड 24, 36, 48 एंड 60। ओके, अब पहला मेंबरशिप फंक्शन ये समझ लो कि ये है। दूसरा मेंबरशिप फंक्शन यहाँ पे आया, ये बना लिए। तीसरा मेंबरशिप फंक्शन ये बना लिए। ट्रायंगुलर मेंबरशिप फंक्शन हमने लिया है, ठीक है। ओके, चौथा मेंबरशिप फंक्शन क्या बन गया, ये, और पांचवा मेंबरशिप फंक्शन बन गया ये। तो ये हो गया वेरी लो, ये लो, ये मीडियम, ये हाई और ये वेरी हाई। ओके, यहीं तक एक रेंज लेंगे तो यहाँ पे एक ये दूसरा वो ले लेंगे, ठीक है। तो टोटल जो है हमारा वेरी लो, मीडियम, वेरी लो, लो, मीडियम, हाई, वेरी हाई, अल्ट्रा हाई, ठीक है।
अल्ट्रा हाई, ये जो है हमने 6 मेंबरशिप फंक्शन इसमें ले लिया 10-10 के। यहाँ पे हमने 10-10 की रेंज बना ली, तो कितना आएगा ये 12, ठीक है, 12×5 = 60 की रेंज, ठीक है ना। इसमें टोटल हमने छः मेंबरशिप फंक्शन बनाए हैं टोटल, ठीक है। तो ये रेंज हमारी 0 से 12 एक डिफाइन हुई, और इधर जो है ये डिफाइन नहीं है, पर ये एक मेंबरशिप फंक्शन इधर जाता है, ठीक है, इधर। तो और एक ये इधर जाएगा, पर हम जो विंडो सेलेक्ट कर रहे हैं, ओनली वी आर सेलेक्टिंग दिस विंडो 0 to 60। तो यहाँ पे 6 मेंबरशिप फंक्शन हमारे हो गए। तो इसमें हम अपने हिसाब से जितना मेंबरशिप फंक्शन चाहे डिफाइन कर सकते हैं, और जो पीक वैल्यू है वो उसके इधर और उधर जहाँ पे मेंबरशिप ग्रेड एक्सिस को कट करता है, दैट इज कॉल्ड द रेंज ऑफ दिस मेंबरशिप फंक्शन। ओके, सो अगर हम यहाँ पे डिफाइन करें कि 1, 12, 24 और मेंबरशिप ग्रेड हम डिफाइन करें, एक मिनट, अगर हम 1, 10 और 50 ऐसा डिफाइन करें मान लो, ठीक है, और मेंबरशिप ग्रेड हम डिफाइन करें 0, 1 और 0, तो ये कैसा बनेगा? ये ऐसा बनेगा आपका, ये बनेगा 50, तो ये आया यहाँ पे 10, तो आपका मेंबरशिप ग्रेड बनेगा, मेंबरशिप फंक्शन बनेगा ऐसा, ऐसा, ठीक है। तो मेंबरशिप फंक्शन कैसे डिफाइन हुआ हमारा? μA/1, तो ये हो गया 0, सॉरी ये तो 0 आएगा ना, तो 0/0 प्लस 1/10 प्लस 0/50। यहाँ पे 0/50 का मतलब ये नहीं है कि 0/50 1/10 मतलब 0.1। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए मेंबरशिप फंक्शन। ओके, सो मेंबरशिप फंक्शन इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड mu of, suppose that we want to represent the membership function A, then we keep here mu A, okay, and this is x, okay, by x and summation of that, okay, I equal to, अगर ये इनपुट की कितने वैल्यूज लिया है, इसमें 3 लिया है, ओके, तो I इक्वल टू 1, 2, 3, टोटल 3 होंगे, तो सम ऑफ 1, 2, 3। समझ में आ रहा है ये शिवम? यस सर, यस सर। बस ऐसा ही है। तो हम एक्चुअली एक मेंबरशिप फंक्शन मतलब एक आउटपुट मतलब 1 की रेंज में 0 से 1, जैसे क्रिस्प सेट है, क्रिस्प सेट में क्या होता है कि ओनली द वैल्यू कैन बी 0 और 1, यस और नो। इज दिस 5 सेंटीमीटर? यस, बट ह्यूमन रीजनिंग इज दैट 5 सेंटीमीटर थोड़ा सा कम होगा यार, थोड़ा ज्यादा होगा उससे, 5 सेंटीमीटर तो नहीं होगा, मतलब दैट एग्जैक्टली वन कैन नॉट गिव द आंसर 1 और 0 की हाँ है कि नहीं है। डेफिनेटली द आंसर इज इट में समहाउ नियर टू 1। तो ये रीजनिंग जो ब्रेन की है दैट इज इम्प्लीमेंटेड इन कंट्रोल एप्लीकेशंस यूजिंग द फजी। So individual input and membership functions are like this, and so if any input is this is x, this is x1, x2, x3, okay, so the membership grade will be a equal to म्यू ऑफ, जो यहाँ पे है ना, जिस मेंबरशिप वैल्यू का नाम है, सपोज दिस इज बी, ओके, इन प्लेस ऑफ ए वी यूज द बी हियर, देन वी विल कीप हियर म्यू ऑफ
बी इंटू x1 अपॉन x1 प्लस म्यू ऑफ बी इंटू ये मतलब x2 पर मेंबरशिप ग्रेड कितनी है। मेंबरशिप ग्रेड इज ऑलवेज बिटवीन 0 to 1, ओके, प्लस म्यू बी x3 अपॉन x3, ओके। समझ में आ गया चीज। तो ये एक ग्राफ को रिप्रेजेंट करता है, इंडिविजुअल एलिमेंट। जैसे कि हमने ये हमने 4 मेंबरशिप फंक्शन डिफाइन किए। ए ये है वेरी लो, दूसरा मेंबरशिप फंक्शन है बी, ये है लो, तीसरा मेंबरशिप फंक्शन है सी, ये कॉल मीडियम, चौथा है डी, और ये डिफाइन होता है किससे, तुम्हारा हाई, और ये हो गया ई, ओके, और ये डिफाइंड है किससे, वेरी हाई, ठीक है। वैसे हम लोग ज्यादातर क्या करते हैं कि अगर रूल्स सही हमको सैचुरेट करना है, ठीक है ना, रूल्स में पूरा जो आउटपुट इनपुट स्पेस का जो रिलेशन है वो स्मूथ रखने के लिए, कंट्रोल स्मूथ रखने के लिए हमेशा ऑड नंबर ऑफ मेंबरशिप फंक्शन सेलेक्ट करने से सही रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ये है ना, तो ये समझ लो कि ए हो गया, ये बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ये ई हो गया। तो ये जैसे मान लो कि ये शुरू वाला है, सपोज ये कि ये फंक्शन है, मान लो ये मेंबरशिप फंक्शन एन है, तो ये कैसे वेरी हो रहा है, इसका वेरिएशन क्या होगा। यहाँ तो आगे उधर विंडो के आगे है ही नहीं कुछ, तो विंडो के आगे जब कुछ नहीं है तो वो हम जहाँ से इनपुट शुरू हो रहा है बस वहीं से लेंगे, जो हमारी रेंज है, ठीक है। तो ये n इक्वल टू मेंबरशिप फंक्शन n इक्वल टू 0 पे कितना है इसका, 0 पे 0 है, ठीक है, और उसका बीच का वैल्यू चूंकि ऐसे तो डिफाइन होगा ना, 0 पे 1 है, सॉरी 0 पे 1 अपॉन 0। वैसे तो देखो तो ये इनफाइनाइट है, और एक्चुअली ये रिप्रेजेंटेशन है सिर्फ मेंबरशिप फंक्शन का, ऐसे इसका डिविडेशन नहीं कर देना है, ठीक है। तो 1 अपॉन 0 एंड दिस इज 0 अपॉन कितना है, कहाँ पे आया वो हमारा जो रेंज था, ये 12 पर है ना, 12 पे, तो ये 12 है, ओके। चाहे तो आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, क्योंकि जो ये लीनियर है, इसलिए आप चाहे 2 पॉइंट में डिफाइन करें लीनियर को, चाहे 3 पॉइंट में, तो 3 पॉइंट में डिफाइन करोगे तो उसी को आप 0.5/6 प्लस 0/12 भी डिफाइन कर सकते हो, ओके। अगर यही फंक्शन अगर आपका ये है क्या बोलते हैं सिग्मोइड है, तो क्या करोगे, ठीक है, यहाँ पे 1 हो गया, ये फंक्शन अगर आउटपुट ये 1 यहाँ पे हो रहा है, तो यहाँ कहीं पे भी जो वैल्यू है वो क्या होगी, मान लो ये x है, ठीक है, x2 है, और यहाँ पे ये क्या है x1 0, ठीक है, तो फाइनल वैल्यू क्या हो गई x2, ओके। तो यहाँ पे 1 अपॉन 1 माइनस ये 1 प्लस वही वाला लगेगा रूल, इसमें भी सिग्मोइडल वगैरह यूज होगा, ठीक है। तो जो मेंबरशिप फंक्शन है वो उसका जो शेप है वो ऐसे डिफाइन हो जाएगा डिपेंडिंग ऑन दिस फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ तक तो समझ में आया ना आप लोगों को। तो जैसे हमने डिफाइन किया एक टेम्परेचर को 3-4 रेंज में ले लिया, तो एक हो गया लो, एक हो गया हाई, एक हो गया एक्स्ट्रा हाई, और ज़्यादा लिए तो अल्ट्रा हाई, ठीक है ना। तो ये दीज टर्म्स आर यूज्ड इन द फजी रिलेशंस।
क्यों शिवम, कुछ है कि ये फर्जी सही है कि फर्जी ही है टोटल? नहीं सर, अभी तो ठीक है सर, आगे पता चलेगा। नहीं, आगे के भविष्य में सोचना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जो इंसान भविष्य का सोचता है वो परेशान होता है। इंसान को हमेशा प्रेजेंट में ध्यान लगाना चाहिए। प्रेजेंट में कार्य करने से चिंता के कारण आदमी परेशान नहीं होता है, ठीक है ना, कि प्रेजेंट में वो कितना टफ कंडीशन है वाली है। अरे भाई, वर्तमान में हम जिएंगे कि अभी क्या है, बस वो तो प्रेजेंट अभी का हम समझ लेंगे तो भविष्य का समझ में आता रहेगा। मतलब वही है कि हम डरते रहते हैं जो फ्यूचर के लिए, तो ये ऐसा कुछ नहीं है। हमें प्रेजेंट में देख के वो खुद ही तैयारी हो जाता है फ्यूचर का। अभी इसमें जिससे हम ध्यान देंगे तो सब वही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ इतना तो समझ में आ गया है ना। अब इसके आगे है तो इसने कुछ प्रैक्टिस कराया है कि एक मेंबरशिप फंक्शन है, उसमें मेंबरशिप ग्रेड्स दिए हुए हैं कि 0.4 है, 1.0 है, 0.7 एंड 0.8 4 वैल्यूज आर देयर। ओके, तो 4 वैल्यूज हैं। तो इंडिविजुअल जो एलिमेंट्स हैं, अगर इसी को बोला जाए कि x1 x2 x3 की जगह 40 60 80 120, तो अगर इसको जो लिखेंगे और इसका जो इंडिविजुअल मेंबरशिप फंक्शन है 0.4 1.0, तो इसका शेप कैसा आएगा तो आप हम देखते हैं, चलिए ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला निकालते हैं कि 4 वैल्यूज हैं। ओके, हाँ चला गया यार। तो 4 वैल्यूज में ये दिया है कि x1 इक्वल टू हमारा 10 है मान लो, ठीक है, x2 इक्वल टू 20, x3 इक्वल टू 30, x4 इक्वल टू 40 एंड द मेंबरशिप ग्रेड्स आर गिवन एज 0.4 और क्या क्या था 0.4 1 0.7 0.8। ओके, यहाँ पे 1 हो गया 0.7 0.8। ये एक ओनली वन मेंबरशिप ग्रेड के लिए बताया है, ठीक है, सपोज मेंबरशिप फंक्शन के लिए, ठीक है। दिस डिफाइन द मेंबरशिप फंक्शन एंड दिस इज द मेंबरशिप ठीक है। तो देखो यहाँ पर है 0, ठीक है, तो 0/0 को कोई मतलब नहीं है लिखने का, ठीक है, क्योंकि ऐसे नहीं। तो यहाँ पे जो 10 है, ठीक है, 10 रुपये जिसके पास है उसने 40% कंट्रीब्यूट किया, ठीक है। तो ये हो गया 0.4, तो ये क्या आया, ये हमारा आ जाएगा। ओके, दिस पॉइंट फर्स्ट पॉइंट। दूसरा क्या है 1 है एट 20, यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है, तो ये आ गया। नेक्स्ट 0.7 30 में 0.7 आ गया, तो यहाँ पे आ गया 30 एंड 0.7, तो यहाँ पे क्या हो गया 50%, 0.75% एंड दिस इज 0.7। ओके, ऐसे ही 0.8, तो 0.8 आया कहाँ पे 40 पर, तो यहाँ पे आ गया 0.8 इन 40। So what is our
फंक्शन, ये होगा हमारा वेरिएशन, ठीक है। दिस डिफाइंस द मेंबरशिप फंक्शन, ओके। तो ऐसे ही कुछ और एक दो वैल्यूज के लिए लिखा है कि ये फिगर दिया है 2.3। इन फिगर 2.3 द वैल्यूज आर गिवन। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मेंबरशिप ग्रेड एट x1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मेंबरशिप ग्रेड एट 1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मेंबरशिप ग्रेड एट इनपुट 3। तो ये अलग अलग वैल्यूज पे द वैल्यू ऑफ द membership grades are given. So this is defined only for this B1. For B2 again, suppose that the window is only up to 0 to x4, then 0 upon 0 is not considered, okay. So up to x4 only there will be the function. So the membership function B2 very tall will be varying from x2 to x4. So that is 0 but 0 divided by 0 upon x1, 0 upon x2, then 0.6 upon x3 and 0.9 upon x4, okay. So this will be the another value will be defined by this value. So here you can see 0 by x1, 0 by x2, 0.6 by x3, 0.9 by x4. So so this is one membership function, this is another membership function, okay. So a complete variation of input versus the grade of the membership function is defined by this relation, okay. तो चलो ठीक है, आज के लिए तो आई थिंक अभी और पढ़ना चाहते हैं आप लोग? पेंडिंग तो है वैसे एक क्लास और? नहीं सर, बहुत है। बहुत है तो सर आज के लिए बहुत है। जो मैंने अभी समझाया है वो काम का है, समझ में आया है? हाँ सर, थोड़ा थोड़ा आया, ही पढ़ेंगे बुक से और देखते हैं और आ जाएगा। ठीक है। तो जो ये मैटलैब है, मैटलैब में आप लोग खोलना, अपने फजी खोलना, फजी डालना, फजी में खुल जाएगा। उसके बाद उसमें जाना, तुमको चलो दिखा देते हैं, 5 मिनट की केवल बात है, ठीक है। तो प्रैक्टिस करना थोड़ा, तो ये चीज़ें ज़्यादा जल्दी समझ में आ जाएगी कि फजी में ये जो मेंबरशिप ग्रेड अभी हमने बताया तो उसमें कैसे बनता है। उसमें भी ऐसे ही 3 मतलब जो एक बीच का जो मैक्सिमम वाला पॉइंट रहता है तो उसमें डिफाइन करना पड़ता है कहाँ जा रहा है। आप शिफ्टिंग कर सकते हैं, शिफ्टिंग करेंगे तो जैसे अभी आप देखिए कि यहाँ का मेंबरशिप फंक्शन एक तरह से ये वाला देखिए, यहाँ का अगर आप शिफ्टिंग कर दिए, सपोज कि शिफ्टिंग आप यहाँ से कर दिए, ठीक है, तो ये कहाँ तक चला जाएगा, ये तो यहाँ पे इसका फिर फंक्शन कैसा आएगा, 0.0 तो आएगा नहीं, फिर 0.10, फिर 0.20, ठीक है। जबकि वही क्या था, 10 पे 0.4 था, लेकिन यहाँ पे 10 पे अब 0 आएगा, शिफ्टिंग हो गई तो, ठीक है। तो अलग अलग एक्सप्रेशन है, शिफ्टेड मेंबरशिप फंक्शन है। तो एक मिनट आपको दिखाते हैं। ये देखिए खुला दिख रहा है ना विंडो? यस सर, दिख रहा है। तो इसमें देखो अभी एक इनपुट और एक आउटपुट है। आप यहाँ से मिला लीजिए न्यू FIS, ठीक है ना। आप ममदानी लगा रहे हैं, 2 टाइप के होते हैं, ममदानी और सुजैनो। तो न्यू FIS में आपने गया तो एड वेरिएबल इनपुट, आप 2 इनपुट 3 इनपुट एक आउटपुट का बनाना चाहते हैं तो एक इनपुट और ऐड कर दिए आपने और एक और इनपुट ऐड कर दिए, 3 इनपुट एक आउटपुट, ठीक है ना। चलो हम अभी 2 इनपुट और एक आउटपुट का बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो ये मेथड है तो सब चीज़ें सेंट्रॉइड मेथड कौन सी यूज कर रहे हो डिफजिफिकेशन में, और यहाँ पे एक दूसरा क्या है, यहाँ पे आ गया। ये दो तो मेंबरशिप फंक्शंस बनेंगे किसमें, इनपुट के, और एक बनेगा आउटपुट का। तो यहाँ 2 इनपुट हो गए और आउटपुट का ये, ठीक है। तो इनपुट में आप जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे, ठीक है।
आप यहाँ पे इस फंक्शन को हमने सेलेक्ट किया, इस मेंबरशिप फंक्शन को MF1, इसका नाम हमने क्या रख दिया यहाँ पे देखो, वेरी लो, ठीक है ना। तो वेरी लो में क्या दिखा रहा है, वेरी लो में 0 पे 0 दिखाया पैरम्स, यहाँ पे 0 पे 1 है, ठीक है, ये सेंटर वाला पीक पॉइंट बताता है। ओके, तो यहाँ पे 0.4 पे 0 हो गया है, यहाँ पे ये देखो, ठीक है। अगर हम इसी को, यू कैन सी हियर, इफ वी डू 8, then what is the effect, this point has shifted here. If we change 2, then this point is shifted here, means third point is shifted here. If we shift the central point, suppose that we shift it at point 1, then what will happen, ये देखो, ये पॉइंट 1, ये वाला जो वैल्यू है पीक वाला पॉइंट 0.1 पे आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो 3 वैल्यूज होती हैं, एक पीक पॉइंट रिप्रेजेंट करता है, एक उसका एंड पॉइंट, और एक शुरुआत का पॉइंट। जैसे ये वाला मेंबरशिप फंक्शन है, ठीक है, यहाँ 0.1 में शुरू है, अगर हम 0.1 की जगह इसको 0 बना दें तो क्या होगा, ये देखो 0 पे चला गया, ठीक है। अब इसको हम जो सोच रहे हैं कि जो इसका नाम है वो हम क्या करें, चेंज कर दें मीडियम, ठीक है। तो ये मीडियम हो गया उसका नाम। यहाँ पे आपने इसको चेंज करना चाह रहे हैं कि ये 0.3 में इसका पीक पॉइंट आए, क्योंकि आप जैसे लीनियरिटी चाहते हैं, आप लीनियर इनपुट आउटपुट रिलेशन चाहते हैं, तो आपको एकदम ये एक दूसरे के ओवरलैपिंग में होना चाहिए, ठीक है। ओवरलैपिंग में मतलब का, यहाँ से 0.2 से ये खत्म हो गया तो 0.2 में इसका पीक पॉइंट होना चाहिए। जैसे दूसरा ये है, हमने इसको 0.2 में दे दिया, ठीक है। ऐसे ही जो एंड सर ये पॉइंट जो है, कमांड आप हम डाल रहे हैं, तो जैसे हमने लॉजिक बना लिया है पूरा, ये कमांड हाँ, कॉपी कर, ये कमांड हिस्ट्री है, पूरी कमांड कॉपी करके आर्डिनो में डालेंगे तो काम करेगा? एड्रिनो में नहीं काम करेगा, नहीं सर, लेकिन प्रोग्रामिंग ये कर देना कॉपी पेस्ट करके, कमांड तो है ही। तो इसको जो इसका वो है, अगर रन होगा इसका सी कोड वगैरह जनरेट हो जाए तो हो सकता है हो जाए। तो वही पूछ रहा था, क्योंकि सर ये देखो, प्रैक्टिकल पॉसिबल हो जाएगा ना, फिर कुछ एक तरीके का कोड भी ये बनाना है। प्रैक्टिकली मैंने इम्प्लीमेंट किया है अपने मोटर में, इसमें जो PhD का काम था उसमें मैंने इसको इम्प्लीमेंट किया है प्रैक्टिकली। ये देखो, इसको हम डायरेक्ट कर्सर से मूव कर सकते हैं, ठीक है। ये देखो यहाँ पे, अब जैसे कि आपको ऐड करना है, ऐड मेंबरशिप फंक्शंस, तो इसमें इस वैल्यू में मेंबरशिप फंक्शन आप ऐड करना चाहते हो, 2 और ऐड करना चाहते हो तो ये और ऐड हो जाएगा। देखो यहाँ पे 2 ऐड हो गया नया, ये वाला और एक ये वाला, इसको आप अपना शिफ्ट कर लो इधर लाके, तो ये आपका यहाँ पे आ गया, और एक ये वाला वैल्यू एक दूसरी बन गई यहाँ पे, ठीक है। 5 बनाना है आपको, ठीक है। तो इसका वैल्यू -1 है, 0.2 कर दिए तो ये ऐसे करके बन जाएगा, ठीक है। तो समझ में आ रहा है ना सब चीज। तो पूरा ये जो कंट्रोलर है, इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन रियल टाइम। ओके, तो ये जो है मेंबरशिप फंक्शन, अब यहाँ पे देखो ये दिख रहा है ना कि MF क्या लिखा है यहाँ पे 1, MF1 मीन्स ये MF1 है, MMF नहीं, MF1 जो है 1 से शुरू होता है, 4 पे इसका पीक है और 8 पे एंड है, तो 1 4 8। ओके, ऐसे ही ये क्या है, यहाँ 4 पे स्टार्ट हुआ, 8 पे पीक गया है, फिर 9 पे खत्म हो गया, तो 4 8 9, जैसे वहां पे मैंने 3 पॉइंट्स दिखाए थे। ओके, नाउ ट्रायंगुलर MF मेंबरशिप फंक्शन, ट्रायंगुलर मेंबरशिप फंक्शन, ट्रायंगुलर के लिए क्या दिखाओगे कि ट्रायंगुलर में 3 पॉइंट हैं, ठीक है, ABC, तो ये हो गया A, ठीक है, ये हो गया B और ये हो गया C।
तो ए बी और सी से ग्राफ बनाओ उसका, तो यही निकलेगा। ओके, ठीक है। तो चलो बाकी फिर कल कंसीडर करेंगे, आज के लिए इतना काफी है। तो हाउ यू फील आफ्टर दिस लेक्चर? आई नीड अ फीडबैक फ्रॉम यू। दिनेश जी, सर सर समझ में तो आ रहा है थोड़ा थोड़ा। कितना वैसे लगभग समझ में आना चाहिए, मतलब इसमें कितने परसेंट मेंबरशिप फंक्शन है उसकी समझ में आने की, मतलब? सर सही है, थोड़ी नई चीज है, थोड़ा खुद से देखना पड़ेगा, मतलब समझ तो आ रहा देखो है। इसमें जो है थोड़ा, जैसे आपने कहा ना कि थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, सर पूरा समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो पूरा का आपने मेंबरशिप ग्रेड रखा है एक, और थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है तो 0.75 डिफाइन कर दिया आपने कि इसकी मेंबरशिप ग्रेड जो है तो 0.75 है, मतलब 75% है। कोई इसको हो सकता है कि Yes. थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा तो बोले 50% ही है थोड़ा थोड़ा, मतलब। तो उसका रेंज डिफाइन किया, इसको कहते हैं। अब रेंज कैसे डिफाइन किया? नॉलेज बेस पे, अपने Yes, sir. अनुभव के आधार पे, ठीक है ना। और रूल बना लिए कि भाई ऐसा होगा तो थोड़ा सा कहलाएगा वो, है ना। तो Yes, कहने sir. का मतलब कि आपने जो आपने एक तरह से कहा, ये भी एक फजी रीजनिंग ही हो गई कि मतलब थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा Yes. सर, ढंग ढंग से पूरा मतलब 100% समझ में नहीं आ रहा। जहाँ बहुत अनडिफाइंड पॉइंट चीजें 5 से ऊपर है सर। हैं। सर 0.5 से ऊपर है। मतलब कि ए शिवम, तुम्हारा मेंबरशिप ग्रेड क्या है इस फजी रीजनिंग में, इस लेक्चर के लिए? सही जा रहा है वही सर। ऐसा पॉइंट तो नहीं 6। है कि अगर टाइम बेस जो है तो इनपुट हो गया तो एट टू जो है तो 2 PM इट वाज 100%, एट 2:30 2:30 PM इट वाज 50%, एंड एट 3 PM इट वाज 0। नहीं सर, चिंता मत मतलब सर करिए। आप समझ में आना बंद हो गया सर, लेक्चर पूरा हो गया है। नहीं सर, समझ में आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। 60%, 50-60% से समझ में आ रहा है। धीरे धीरे सर अडॉप्ट कर लेंगे इसको भी। चलो ठीक है, हो गया है ना। ठीक है, तो हम स्क्रीन हम शेयर करते हैं और अटेंडेंस हम डाउनलोड करते हैं, ठीक है। हालांकि इसका अटेंडेंस तो डाउनलोड है ही उस दिन का, तो चूंकि ये फिर से लिए हैं और इसकी रिकॉर्डिंग वगैरह सब कुछ है, तो इसको एक अलग फोल्डर में डाल के रख देंगे कि पेंडिंग लेक्चर ऑफ मंडे, ठीक है ना। तो अगर कभी इसका इंक्वायरी होता है तो फिर बता देंगे भाई हाँ मंडे में लिए थे, है ना, पूरा एक लेक्चर, सॉरी फ्राइडे में लिए थे, है ना। तो